नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप रामग्याल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सो प्रदीप जी, व्हाइट शर्ट कैंपेन बाय मिस्टर राहुल गांधी। आई एम एक्चुअली फॉलोइंग राहुल गांधी जी, व्हाइट शर्ट कैंपेन। मैं समझ गया सर। तो मतलब लेकिन ये सफेद कमीज, मतलब मेरी समझ के बारे में, मेरी कमीज उनकी, उसकी कमीज से सफेद कैसे? मतलब आज बिहार में जो उन्होंने व्हाइट शर्ट के पदयात्रा शुरू कर दी है, व्हाइट टी शर्ट, तो उसमें क्या कि माइग्रेशन को खत्म करना पड़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना पड़ेगा। दिस इज अगेंस्ट माइग्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इश्यूज को लेकर, मगर वन कॉमन फैक्टर अक्रॉस द नेशन इज व्हाइट शर्ट। व्हाइट शर्ट व्हाई द व्हाइट शर्ट? क्योंकि मुझे अभी तक याद है, जैसे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के वो लाल कमीज वाले हुआ करते थे, और यू नो गैरिबाल्डी हैड द ब्राउन शर्ट्स, एंड अपने क्या नाम है इनका, जो मुलायम सिंह यादव साहब की लाल टोपी वगैरह हुआ करती थी। तो ये सफेद कमीज कहां से आ गई? राहुल गांधी जी हमेशा व्हाइट टी शर्ट पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द वक्त ही इज ऑन व्हाइट टी शर्ट। तो प्रोबब्ली दैट इज कैंपेन मैनेजर्स ने कहा इस व्हाइट टी शर्ट कैंपेन पे हम लोग चालू कर देते जी, एंड इट विल बी इफेक्टिव। प्रोबब्ली लेट्स सी इफ ही इज प्रेसिंग ऑन द इश्यूज दैट अफेक्ट्स द सोसाइटी, issues that affects the country. Unemployment is one, migration in Bihar is the other, but अलग-अलग states में अलग-अलग issue है, but common factors, price rise, inflation, unemployment, and there's farmers issues. And there's one thing which I still don't understand with regard to the Waqf Board Amendment Bill. Now, the NDA government says very, very clearly that we have tried to bring the functioning and the operations of the Waqf Board within the framework of the Constitution, because up till now it was behaving like an extra constitutional authority. 11 parties have gone to court against this same Waqf Amendment Bill, which has now been passed into law after the President Draupadi Murmu ji signed it. So now it has become a law. So what is the new argument that they're going to present in court, which they were not able to present in Parliament? What? संविधान के खिलाफ है। This is against the essence of the संविधान. It's destroying the fabric. जो कह रहा है कि फेडरल सिस्टम का फैब्रिक है उसको नष्ट कर रहा है। That is what the Congress argued in the Parliament also. But the court is definitely going to ask you. It went through the entire process. पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया, it was referred to as JPC, and after JPC it came back to the House, and both the houses and it was discussed, argued, amendments, जो जिसने भी amendments लाए थे उस पर वोटिंग हो गया। तो the process has been, now they have to, but then the process, this is a legal option available to the opposition and they should indulge it, because आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अगर जो भी तय करेंगे, अगर संविधान के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, संविधान के साथ है तो अल्टीमेटली what the BJP says कि वक्फ is for the benefit of Muslim community, जो गरीब है, अनाथ है, जो विधवा है, जो पसमंदा मुसलमान है, जो गरीब है, तो इन सब का यतीम बच्चे, तो अगर इनके बेनिफिट के लिए सचमुच ला रहा है और सुप्रीम कोर्ट देख लिया, then it will be passed. If not, it will be struck down that it is unconstitutional and insidious encroachments on liberty. Gee. So let's. I think we are joined by a wonderful panel of guests. Let's see who are the guests who are already with us. Can we have our guests on air, please? I think we've got Mr. Ali Daruwala. I can see him right now. Our own Mr. Paul Mooney, right here with us. Ready for battle ready. You know, Paul Mooney is one of the very, very few Hollywood actors who won back-to-back Oscars. And I think Ali Daruwala Saab is in line to do yes, the same. He's going to do this. So he's always ever ready batteries. He's just powerful. I say waiting to explode. Daruwala Saab, congratulations. Thank you, sir. Thank you so much. God knows for what, but thank you. Sir, for the fact that the Waqf Amendment Bill got passed, you brought the functionings of the Waqf within the framework of the Constitution. That's what the NDA government says. बाकी जितने भी विपक्ष के लोग हैं, विरोधी दल के जितने भी लोग हैं, वो सब कहते हैं कि ये संविधान के विरोध में है। अरे भाई, संविधान के विरोध में कैसे, मेरे को समझ में नहीं आया। आप समझाएंगे सर जरा, दारुवाला साहब? Yeah, over here I'd just like to bring to your notice, Rajiv sir, Pradeep sir, since you both are in Bombay right now,
like we have the Sunni Waqf board, Yes. same way we have the Shia Waqf board, Yes. and we have the Bhori Waqf board, the Yes. Bhora Jamaat. Yes. And let me highlight the Waqf board activities of the Bhora Waqf board. They have that street over there, which is called the very famous street behind Saifi Hospital, where all the spare parts shops Ji, ji, are. ji, They ji, are ji. all owned by the Bhori By the, Waqf Bo- board. by the Bora The community, yes. Saifi Hospital is owned by the Waqf board. The entire street, I can get you the name of the street whilst we are talking, I'll just remember about it. The income, the Bhori Waqf board gets in Maharashtra, forget alone India, in Maharashtra, in a single household in the Bhoris, they are told not to make the afternoon meal. The tiffins are supplied by the organization, by the masjid, and the funding, the money. Just imagine there are thousands and thousands and thousands of houses. The afternoon food is provided by the community, by a community kitchen, and the money that they have, their surplus. Point number two, forget about the tiffin. Are you talking Now- about the Saifi Jubilee Street? Is that what you're saying? The Saifi Saifi Jubilee Jubilee Street? That is another Then, street which is then there's the where all Khara spare Tank part Road. shops are. Then there's the Bhora Muhalla, Bora Walla. and so on. Yes. Correct, correct. जी, Now जी, I'm जी. coming to the Saifi Hospital, Rajiv जी sir, जी Pradeep sir. वो तो हमारे सामने बना है सर. That जी हाँ. hospital is a 1,000 bed hospital Yes. offering free medical treatment besides color, creed, caste and community. Yes. वहाँ पे ऐसा कहा नहीं जाता कि आप हिंदू है, आप शिया है, आप जी, मुस्लिम दुरुस्त है, आप नहीं क्या बौद्ध जमात से है. वहाँ पे जो भी गरीब आता है उसको ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है. That is again run as a charitable institution and that money is funded by the Bhori Waqf board. Third thing, the rent which is collected from all the shops in that area is going into the community and that money is given to Bhori entrepreneurs who want to do business at 0% interest. जी. Now tell me one thing, when there is such a smooth functioning of a Waqf board, do you think any government or any organization will raise a finger, will want to take over such a efficiently functioning board? So what is this parity? Why aren't the Sunni Waqf board functioning? They have 1/3 of the land parcel in this country. Just imagine 9,50,000 square kilometers of land under the Sunni Muslim Waqf board. Rajiv sir, Ji. Pradeep sir, you're Googling as I'm talking to you. You're getting all the information and we cannot talk nonsense in front of you. Tell me one thing, any Waqf hospital, forget hospital, a dispensary, any school, forget madrasa, any university, आज तक के ये वक़फ़ बोर्ड ने अगर बनाया, अगर ये इतना ट्रांसपेरेंट है, तो प्लीज मुझे दिखाइए. मैं खुद आप लोग के सामने हाथ जोड़ के, मेरे पैनलिस्ट के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ. जी. Dawala sahab, I want to say that I want to Let's welcome Asif Faruqi Yes, साहब. I can see welcome, now. yes. अरे फारूकी साहब. welcome. यार ये क्या चक्कर क्या है यार ये. एक मिनट ये मुझे पूछना पड़ेगा. फारूकी साहब, आपका स्वागत है शो में, लेकिन यू लुक यंगर एवरी डे. व्हाट इज गोइंग ऑन सर? ये क्या है, कोई नई गर्लफ्रेंड बनाई है क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन फारूकी साहब? साला हीरो लग रहे हैं बिल्कुल. एवरी वीक यू लुक यंगर एंड यंगर. आपकी ये नजर है, आपकी मोहब्बत है सर. मोहब्बत है. सर आपका दोस्त है हमारे. I'll come back to Darwala sahab. प्लीज. बीजेपी says ये वक्फ रिफॉर्म्स एसेंशियल इसलिए कि गरीब मुसलमान, पशमंदा मुसलमान, जो यतीम बच्चे हैं, विधवा महिला मुसलमान के हैं और जो तलाक से अफेक्टेड है, उन लोगों के लिए जो अब तक कोई काम नहीं रहा था, आज मोदी साहब कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू टर्न ओवर. जो सिंगापुर का उदाहरण उन्होंने दिए थे, सिंगापुर के पास बहुत कम प्रॉपर्टीज है और उसमें से करीबन 43 crores out of only 200 properties of Waqf, Singapore is generating so much money. जब आपने खुद गिनाया कि हमारा 8.7 लाख प्रॉपर्टीज है, 9.4 लाख एकर्स है और सिर्फ हमारा जो है 163 crores, हम लोग 166 crores बना रहे हैं. तो if somebody is saying a change has to be there, where's the problem? दारवाला साहब, आपके लिए. दारवाला साहब बोलिए. दारवाला साहब, कैन यू हियर अस?
Yeah, I just finished. I thought this question was for Achha, No, our it is for you. Faruqi sahab. It is for you. It is for you. We'll be going to Asif Faruqi साहब immediately. बोलिए, ये बोलिए। सवाल आपके लिए है। दारोगा साहब बोलिए। I can assure you, I have not come and ever met a single beneficiary who has benefited from the Waqf board from our treasury. Leave alone treasury. मुझे एक भी बैंक अकाउंट दिखाइए जिसके अंदर डिस्क्रिपेंसी नहीं है. अच्छा, forget all this. Now I'll just talk about a very simple example. Next to my house, there is this Yasin Mastan Dargah Trust. सर, यासीन मस्तान दरगाह ट्रस्ट के पास जो जगह थी ना सर, वो उन्होंने एक बिल्डर को बेच डाली, मंत्री एस्टेट के. वहां पे अब जगह नहीं है. नाउ टेल मी, मंत्री सुनील मंत्री anybody Oh, anybody okay. benefit from this except for those handful of community who are stakeholders? जो वो मेम्बरान थे, जो मुतवल्ली बांगी जो थे, वो 6-7 लोग वो साइकिल पे घूमते थे. इमीडिएटली उनके पास में कार आ गई और वहां पे आज तक इलेक्शन ही नहीं हुआ है. जी। तो व्हाट इज हैपनिंग सर? मैंने आपको एक एग्जांपल बताया जो मेरे घर के बाजू में है. जी। आपके इंडिया में क्या होता रहेगा सर? ये यू कैन नॉट इमेजिन. और ये एक रेवेन्यू बिल है. Sir, I ये can किसी imagine. की जात पे, किसी के पात पे, किसी के ईमान पे कोई अटैक ही नहीं है. एक रेवेन्यू बिल है. ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं. जैसे सारे हिंदू इंडाउमेंट एक्ट है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो यहाँ पर अगर इंडाउमेंट एक्ट के तहत सर अगर मुझे ये government समझ में नहीं control करती है तो आता आपको सर. वो problem ठीक क्या है सर, ये ऑल दीज एग्जांपल्स आर ऑलरेडी देयर ऑल ओवर द प्लेस. एंड जैसे आपने बोला ना अभी, आई हैव पर्सनल नॉलेज आल्सो ऑफ द सेम थिंग. लेकिन ओके, वील आस्क अबाउट दैट लेटर. वो दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल के बारे में जरा बाद में बात करेंगे, अदरवाइज वील लूज फोकस. लेकिन आसिफ फारूकी साहब, ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जो फंक्शनिंग है उसको संविधान के फ्रेमवर्क के भीतर लाया जा रहा है, कि संविधान का जो कानून है उसके भीतर लाया जा रहा है. तो उसमें ऑब्जेक्शन क्या होनी चाहिए? और दूसरी चीज क्या है आसिफ फारूकी साहब, 11 पार्टियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गई हैं. हर एक का हक है सुप्रीम कोर्ट में जाना. आपका भी हक है, मेरा भी हक है, सबका हक है, जा सकते हैं, ऐसी क्या बात है. लेकिन वहां पर क्या आर्ग्यूमेंट पेश करेंगे? क्योंकि अगर आर्ग्यूमेंट बहुत जबरदस्त होती तो सुनने में दिखाई देती ना सर लोकसभा में. तो लोकसभा में आइदर एवरीबडी वाज अंडर प्रिपेयर्ड या कोई रिसर्च करके नहीं आया था. अपार्ट फ्रॉम हमारे क्या नाम था उनका, सैयद नासिर हुसैन साहब, वो बहुत बढ़िया बोले. कांग्रेस के थे, कर्नाटक के हैं शायद वो, जहां तक मेरा ख्याल है राज्यसभा के मेंबर हैं. उन्होंने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त स्पीच थी उनकी. अब आर्ग्यूमेंट अच्छी थी नहीं थी वो अलग बात है, लेकिन इट वाज वेरी इफेक्टिव. उनके अलावा, क्योंकि मैंने सारी डिबेट देखी है, उनके अलावा हमारे असुद्दीन क्या है, ओवैसी साहब. पहली बार मैंने ओवैसी साहब को देखा फंबल करते हुए. ज्यादातर क्या है कि ओवैसी साहब जो हैं, क्योंकि कानून के बड़े एक्सपर्ट हैं वो, माशाल्लाह वो जबरदस्त उनकी आर्ग्यूमेंट होती है. अरे भाई वो नासिर को भी दिखा दीजिए ना, सैयद नासिर हुसैन साहब को दिखाइए ना आप. आई नो असुद्दीन ओवैसी साहब इज योर फेवरेट. हमारे यहाँ पे बहुत हैं ओवैसी साहब के, सारे वोटर हैं हमारे यहाँ पे. मैं बता दूं आपको फारूकी साहब, तो वो सैयद नासिर हुसैन को भी दिखा दीजिए. तो पहली बार मैंने ओवैसी साहब को देखा फंबल करते हुए. तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि डोंट यू थिंक परहैप्स द गवर्नमेंट शुड बी गिवन अ चांस कि भाई आप इसको चला करके दिखाइए. अगर अच्छी तरह चला रहे हैं तो ठीक है, नहीं चला रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स द कोर्ट इज ऑलवेज देयर. आप क्या समझते हैं इसके बारे में आसिफ फारूकी साहब? नहीं सर, अगर कोई उसके अंदर वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई गड़बड़ थी, जो कि है, बहुत सी है, तो उसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप उसके बेसिक्स चीज़ों से उसको ख़त्म कर देंगे. जैसे ये मुसलमानों का मामला था जिसमें मुस्लिम्स के ही ज़्यादातर मेंबरशिप थी, जिसमें लास्ट टाइम मैंने उसको क्लैरिफाई किया था कि एक मेंबर कोई भी नॉन मुस्लिम हो सकता था. आज 7 मेंबर जो है आप नॉन मुस्लिम दे रहे हैं, तो ये आप कहाँ से इसके बारे में अच्छा सही फैसला करेंगे सर? आप जितनी भी आप पास्ट में देख लीजिए कि 3 तलाक कानून के बारे में आपने कहा, उससे कौन सा बहुत अच्छाई हो गई है, क्लियरिटी हो गई है क्या? मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि मुसलमानों का ये मसला 1 या 2% भी नहीं है, और उसको उन्होंने पूरी इस तरीके से मार्केटिंग की कि बड़ा आपने मुसलमानों के साथ बड़ा अच्छा काम कर दी. उनके पर्सनल मैटर है, उससे देश के अंदर कोई अच्छाई तो आने वाली नहीं थी. इसी तरीके से वफ़ का जो मामला है, अगर वो गलत है, कोई चोरी कर रहा है, तो वो स्टिल वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करते थे, उसको आप वो सही करते.
लेकिन आप उसको जी। उनके हाथ से छीन के दूसरे लोगों को वो दे देंगे और जय श्री राम के नारे लगाएंगे, ये कहाँ से सही तो है? आप आसिफ फारूकी साहब, एक सवाल छोटा 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 वन स्मॉल इंटरवेंशन फारूकी साहब, फॉर क्लैरिटी हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए, और मैं चाहूंगा इस पर अली दारूवाला साहब भी रिएक्ट करें बाद में आपके बोलने के बाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं, यह कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड, कई वक्फ बोर्ड ने अलग अलग जमीनों पर कब्जा कर लिया। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया, कर्नाटक में कई सरकारी जमीनों में कब्जा कर लिया, कई गांवों में यह कह दिया कि यह वक्फ की जमीन है। जो आप आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं ना, जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, उससे मुझे यह ख्याल आ रहा है कि इसके लिए अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं थी। ये अंडर द आईपीसी या सीआरपीसी ये मामले जो हैं उसी में सॉल्व हो सकते थे कि अगर मान लीजिए कोई धोखाधड़ी का मामला है, किसी ने जाकर के कोई लैंड क्लेम कर दी जो उसकी नहीं है, तो आप अंडर सीआरपीसी उसके खिलाफ एक्शन लीजिए ना। तो मेरा यह कहना है सर कि 2013 में यह वक्फ बाय यूजर का मैटर आया, उसके बाद अभी तक मैंने पूरा पढ़ा, शायद आपके पास ज्यादा वो हो, मतलब लिस्ट हो आपके पास, प्रदीप भाई के पास हो सकती है, अली दारूवाला साहब के पास, मेरे पास अभी तक एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं आई है कि वक्फ बाय यूजर को लेकर के असल में कितने मामले सामने आए हैं जो कि वायलेशन है क्रिमिनल लॉ का। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपकी ये आर्गुमेंट है कि ये सब मामले देश के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कानून है उसके तहत सॉल्व हो सकते थे, और जिन लोगों ने गलत काम किया उनको जेल में डालो? प्रॉब्लम क्या है? बोलिए फारूकी साहब। सर, इसको हमने कभी भी इनकार नहीं किया है जी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और वक्फ के मामले से आपको हो सकता है ज्यादातर लोग मुसलमान मिलेंगे जी, जैसे फॉर एग्जांपल अंबानी साहब की जो जगह है जी, 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 वो तो मुसलमान ट्रस्ट था ना, उन्होंने बेचा है सर, जी। उन्होंने बाकायदा वो एग्रीमेंट तो बनाया सर वो बच्चे तो मुसलमान बच्चियों के लिए यतीम खाना था सर, दैट वाज लिए यतीम खाना था। जी, तो आपको उसके तहत जो कानूनी कार्रवाई करनी करिए ना सर। जी, हमारा एज अ मुसलमान ये बोलना है कि वक्फ की जगह जो है वो बेची नहीं जा सकती है, चाहे मेरे अंडर में रही हो चाहे आपके अंडर में रही हो, क्योंकि वो वक्फ की जगह किसी और ने उसको दान पुण्य किया था, मैं तो उसका रखवाला था, रखवाले बेच रहे थे, तो उसमें तो गवर्नमेंट को कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट तो उनको बचा रही है सर आज की तारीख में। फारूकी साहब, ये जो आप कह रहे हैं सेक्शन 40, सेक्शन 40, जो सेक्शन 40 आप बोल रहे हो, जो सेक्शन 40 यूजर, जो वक्फ बाय यूजर, उसमें पूरे एंटायर विलेज को वक्फ ने क्लेम किया। 8 स्टेट में 515 वक्फ के प्रॉपर्टीज है, उसमें 123 एएसआई के नेशनल मॉन्यूमेंट है, डिक्लेयर किया, नेशनल मॉन्यूमेंट भी वक्फ ने यूसब कर दिया। ये सब चीज है। और वो जो क्रिमिनल जो बोल रहे, आज के तारीख में इस बिल में ये लिखे है कि ट्रिब्यूनल फाइनल नहीं होगा, आपको सिटी सिविल कोर्ट जैसे अभी वो आ गया है अमेंडमेंट कि आप सिटी सिविल कोर्ट में भी जा सकते हो। बट मेन चीज मुद्दा फारूकी साहब ये नहीं है, मेन चीज ये है कि राहुल गांधी जी ने इस चीज के लिए एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आवाज क्यों नहीं उठाया पार्लियामेंट में? एक शब्द प्रियंका गांधी जी 2 दिन लगातार 3 दिन लगातार पूरे वक्फ के पूरे प्रोसीडिंग्स के बाद दरमियान प्रियंका गांधी जी वहां पर नहीं थे। ये बहुत बड़ी गांधी फैमिली इस डिबेट में पार्टिसिपेट न करना फारूकी साहब, ये बहुत बड़ा एक डीमोटिवेशन है, ये पूरे मोटिवेशन निकल जाते हैं पूरे कांग्रेस फोर्स से। तो इसका क्या कारण हो सकता है सर? अभी वो कारण तो वो जाने, मुझको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही टेक्निकल, जो वक्फ का मामला है वो बहुत ही टेक्निकल है सर, और उसके हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो बेसिक बातें कर रहे हैं, जैसे वक्फ की ज़मीन को गवर्नमेंट नहीं हाथ लगा सकती, और आधा हिंदुस्तान वक्फ का था और अब हम आज आज़ाद हो गए, इस किस्म की बातें, ये गलत बातें हैं। ये जो वक्फ की जगह इस वक्त मौजूद है सर, ज़्यादातर 99.9% वो हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने कई जनरेशंस पहले उसको अपनी ज़मीन जब दे दिया है फॉर एग्जाम्पल, और आज जो लोग मौजूद हैं उसके ऊपर वो उसके यूजर्स हैं, जो रखवाले हैं, उन रखवालों को हटा के गवर्नमेंट जो है बोले तुमको, अरे वो रखवाले बहुत कमजोर, वो अपने बाप की समझते, उनको हटाइए। वक्फ की जगह वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के हित में सही
उनके फायदे के लिए बनाई गई है, गरीब गुरबा के या जो भी उसके मसले के लिए दी हुई है उसके लिए है, और गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि उसकी हिफाजत करे। No, over here there's one small thing, वो sir. जमीन जो है आसिफ साहब, गवर्नमेंट ले ले और दूसरों को दे दे, जी। अंबानी जैसे को साथ दे। पहली बात सर, अंबानी को तो गवर्नमेंट को बाहर कर देना चाहिए कि तुम गलत हो। Sir, over here there is one small thing which I want to say. मैं चाहूंगा दारू वाला साहब उस पर रिएक्ट करें। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब क्या है कि प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज इट्स द बीजेपी। अगर मान लीजिए यही चीज कांग्रेस लेकर के आती तो इतना बड़ा रिएक्शन नहीं होता, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने अपोज किया है सर, कांग्रेस ने जब भी इसके सर मैं एक छोटी सी बात साहब के सामने रखना चाहता हूं। 2013 में जब अमेंडमेंट लाया गया था, कि 2013 का जो अमेंडमेंट है ये अमित शाह साहब की स्टेटमेंट है राज्यसभा में, और लोकसभा में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया नहीं, मुझे मालूम नहीं है। राज्यसभा की मैंने डिबेट देखी तो राज्यसभा में उनका ये स्टेटमेंट था कि अगर 2013 की अमेंडमेंट आप नहीं लेकर के आते तो आज ये बिल हमें लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्वाइट राइट, ही सेड इट। बट इन 2013 सर, द बीजेपी डिड नॉट अपोज द अमेंडमेंट। माय पॉइंट इज दिस, why didn't the BJP in the Lok Sabha and the BJP in the Rajya Sabha, why didn't they oppose the amendment? सुषमा स्वराज जी ने इसको अपोज नहीं किया, अरुण जेटली साहब ने उसको अपोज नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा सवाल आता है सर। वाई? आपने क्या बिल पढ़ा नहीं था? क्या था उस वक्त? वाई डिडंट यू अपोज एट दैट टाइम? उस वक्त आपको अपोज करना चाहिए था। उस वक्त आपको यह बोलना चाहिए था कि वक्फ बाय यूजर का तो बहुत जबरदस्त मिसयूज होगा, और होगा ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स। सर, आज आप अनलिमिटेड पावर किसी को भी दे दें, उसका मिसयूज होगा ही होगा। तो मेरा अब यह कहना है कि 2013 में आपने अपोज नहीं किया, आज आप नया बिल लेकर के आ रहे हैं और आप ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी जो है वो विलेन है, विलेन ऑफ द पीस है। आप अमरीश पुरी हैं सर, सीधी बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो यह सवाल तो कांग्रेस को पूछना चाहिए, और पूछ कौन रहा है? राजीव बजाज पूछ रहा है। तो सर आपको क्या हो गया? आपको पूछना चाहिए ना सवाल ये, या आपके लीडर्स को पूछना चाहिए था जब डिस्कशन हो रहा था? अब आप बताइए। इस वक्त क्या हो गया है जी कि अपोजिशन इतनी डिवाइड हो चुकी है जी, और एमआईएम को लगता है कि वक्फ का जो मामला है वो उसके कंधे पे है जी। और मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है सर कि जो जितना बड़ा है उतना बड़ा उसने वक्फ के साथ जाती की है, उसका फायदा उठाया। आपके मित्र भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं सर। ही हैज बिकम अ मल्टी बिलियनर, उसकी 10 पुश्तें खाएंगी अब। आपको मालूम है कौन है? हाँ बोलिए सर। अब सर, अब जैसे 123 प्रॉपर्टीज जो रिलीज हुई थी, उसके अंदर जो पार्लियामेंट के बाहर मस्जिद है वो भी आती है, पार्लियामेंट के अंदर कुछ जमीनें हैं वो अंग्रेजों के जमाने से, आपको पता है सर वो 123 जमीनों की क्या बात है। उसके अंदर ओबेरॉय होटल आता है, वो वक्फ की जमीन पे है ओबेरॉय होटल। सर रायसीना गांव हुआ करता था, रायसीना हिल पे, वो मेजॉरिटी मुस्लिम थे वहां पे, जहां पर ये पूरा का पूरा नई दिल्ली बनी है। पूरे सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पूरे सीजीओ कॉम्प्लेक्स। सर मैं नई दिल्ली वाला हूं, मेरा जन्म जो है फिरोजशाह रोड पर हुआ है, वो कब्रिस्तान पे जगह। क्या बात कर रहे हैं? बट आसिफ फारूकी साहब, इज द मुस्लिम कम्युनिटी डिसअपॉइंटेड दैट राहुल गांधी जी एंड प्रियंका गांधी जी didn't participate in the debate where वक़फ़ is concerned? Because नहीं है, केरल के मुसलमान समाज पूरे डिसअपॉइंटेड है कि why लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्यों नहीं बात की है इसमें? हम लोग देखिए, बीइंग अ कांग्रेसी, हम एक बात ये बोलेंगे कि मुझको लगता है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो फ्रंट पे आके वक्फ के लिए लड़ रही है इस वक्त। आप नहीं 100% सही, 50% जो चीज वो समझ में आ रही, तो मैं उसके ऊपर नुक्ताचीनी कैसे कर सकता हूँ कि वो डिसअपॉइंटमेंट है। डिसअपॉइंटमेंट तो हमको इस वक्त हर चीज के ऊपर है एज अ मुस्लिम, कि बीजेपी हमारे ऊपर इतना हमला कर रही है, हम लोग अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। ये मुसीबत शायद हमारी अपनी लाइफ भी है। अगर मैं उसको यूं देखूं, दारू वाला साहब अभी थोड़ी देर के लिए क्या है कि बीजेपी के लोग जो है रॉन्ग नैरेटिव फैला के अपना काम करने की कोशिश करते हैं। ये सब बहुत टेक्निकल मामलात हैं जिसको एक आम शहरी नहीं समझ पाएगा, आम जो यहाँ का हिंदुस्तानी है वो बात नहीं समझ पाएगा। इन्होंने फट से बोहरा कम्युनिटी का एग्जाम्पल दे दिया। सर आपको मालूम है पूरी दुनिया में कितने हैं बोहरा कम्युनिटी के लोग? 10-15 लाख, 20 लाख। और पूरी दुनिया में मुसलमान कितने हैं, सुन्नी मुस्लिम?
2 बिलियन है सर। सर हम बोरा जो बात कम्युनिटी कर के रहे बारे हैं, में 2 मुंह बिलियन मत के लिए। खुलवाइए। और ये थोड़े से लोगों की एग्जांपल देके पूरा इन्होंने नैरेटिव चेंज कर दिया। सर, उसके पूरा बारे वक्त में समझाने अगर की जाएंगे कोशिश तो कर बात दी। बहुत शेम दूर ऑन तक यू जाएगी। दारूवाला साहब, आप इस तरीके से रॉन्ग नैरेटिव आगे टीवी के ऊपर बोल के और आप करके सर चले तो जाते आपके हैं। आपके मत ये कीजिए इस मुताबिक तरीके आसिफ के फारूकी एग्जाम्पल। साहब 10 अब लाख इसके लोगों बाद के मैं जा रहा लिए हूं जो दारूवाला एग्जाम्पल साहब है, के पास। वो लोग एक छोटी सी कम्युनिटी है, उसके अंदर वो पूरा काम करके लेते हैं। ये 2 बिलियन की आप बात कर रहे हैं। 2 बिलियन वाले लोग में उसमें एक से एक भांत के लोग हैं, एक से एक जहन के लोग हैं। सर इसमें उसके एक और चीज उनको है संभालना सर, कितना एक और चीज मुश्किल है और कितना है वो आसिफ है। फारूकी साहब, आसिफ हाँ। फारूकी साहब और दारूवाला साहब जरा ध्यान से सुनिए। दारूवाला साहब, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? दारूवाला साहब प्लीज। I'm listening to him. I know you look like Paul Mooney, I understand, but all the same, sir. फारूकी साहब, तो क्या यहाँ पर कोशिश क्या हो रही है आपके मुताबिक मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर? मैं जानना चाहता हूं, आप बताएं सर, खुल के बोलें प्लीज। क्या ये अब हो रहा है कि जिस पार्टी में एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं था इस इलेक्शन में, there is not one single MP from the Muslim community of the BJP. Forget about MP. There was no ticket given to any Muslim. Forget about anything else. या तो ये होता ना कि 2-3 आपने टिकट दी होती तो हार गए, अलग बात है। Not one single Muslim was given a ticket even to stand for election. जी, but now I would like to ask you, sir, फारूकी साहब, क्या ये कोशिश हो रही है मुसलमानों का मोराल तोड़ने के लिए बीजेपी द्वारा कि भाई देखो, आप या तो सीधे साधे रहो, अभी तो वक्फ लिया है, आगे जाके पता नहीं क्या क्या लेंगे? इज दैट इट? बोलिए सर फारूकी साहब। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि ये हर तरीके से डरा धमका के, मॉब लिंचिंग करवा के, आपकी जमीनों लेके बुलडोजर दौड़ा के आपकी जमीनें लेंगे, आपके घर गिराएंगे, आपको डराएंगे, आपके उल्टे सुल्टे केसेस में फंसा के आपको डरा के अपना काम करना चाहते हैं। लेकिन सर, मुझको नहीं लगता है कि ये इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर ये पॉसिबल है। थोड़ी देर के लिए इस वक्त जो है खौफ का एक माहौल हो गया होगा, लोग परेशान हैं। एक हम लोग डिवाइडेड हो गए थे। अब मैं आपको एक बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ कि मुस्लिम्स को खुद लगने लगा है कि हम लोग पार्टियों के अंदर बहुत डिवाइड हो गए। एनसीपी में कहीं चले गए, कुछ कांग्रेस में तो थे ही, कांग्रेस बन गई, समाजवादी में चले गए, फिर वो समाजवादी के अंदर से वो बीएसपी थी, बीएसपी में चले गए, तो ये सारे बढ़ गए। शिवसेना में भी अब चले गए, शिवसेना भी अब डिवाइड हो गई, तो वो दूसरी है वो अजीत पवार सेना है उसमें चले गए, उसमें भी वो डिवाइड हो गई। वो थाना के शिंदे साहब है उनमें चले गए। लेकिन अब मुसलमान, आपको अंदाजा नहीं है कि एक हो रहा है और किसी एक पार्टी को वो खुल के सपोर्ट करेगा आगे इलेक्शन में। और ये 2-3% का ही खेल है सर, इनको धूल चढ़ाएगा। सर वो तो पॉलिटिकल बात हो गई। दारूवाला साहब, उद्धव ठाकरे, just Uddhav, now what are you doing, दारूवाला साहब? No, we want to understand because entire India Alliance is saying that आप मुस्लिम समाज के खिलाफ है, मगर उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि आपके अंदर जिन्ना के भूत आए हैं, आपके अंदर जिन्ना के भूत आए हैं, आप अपन मुस्लिम अपीसमेंट की बातें करने लगे हो। दारूवाला साहब, पहले आपने शुरुआत किया सौगाते मोदी से माध्यम से आप किट बांटने लगे कि गरीब मुसलमान को रमजान में मोदी की तरफ से सौगात है। उसके बाद आप कह रहे कि ये बिल के माध्यम से गरीब मुसलमान, पशवंदा मुसलमान, यतीम बच्चे, मुस्लिम विधवाएं, मुस्लिम जो विडो तलाक के पीड़ित है, तो व्हाट आर यू डूइंग? क्या सचमुच जिन्ना के भूत आपके अंदर आया है मुस्लिम अपीसमेंट करने के लिए, उद्धव ठाकरे जी? Correct. Pradeep sir, I'll just take your question one by one and I'll go back to Rajiv sir also. And firstly, I'd like to answer Mr. Farooqi and I would like to answer in Hindi. उन्होंने कहा कि शर्म आना चाहिए। बिल्कुल मुझे शर्म आती है। I am ashamed that in India as a Muslim I am not misguided by the Congress. कांग्रेस की ये जो झूठी चाल है ना, ये जो मुसलमानों को उन्होंने गुमराह किया 60 साल, सब में पहले फारूकी साहब, आपका कांग्रेस ये मुसलमानों का नेता नहीं है, हमारी नुमाइंदगी नहीं करता। आप जब जिस दिन जाग उठेंगे ना, मैं आपको एक सिंपल सादा हिसाब दिखाता हूँ। ये देश में 9.5 लाख हेक्टेयर जगह यहाँ पे वक्फ के माध्यम से मुसलमानों ने गवर्नमेंट के ऊपर रजिस्टर्ड लैंड है। इलीगल का छोड़ दो, जो मैं लीगल का बता रहा हूँ। 17 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहते। अगर आपने जगह भी बांटने का सोचा ना, फारूकी साहब ध्यान से सुनिए,
अगर आपने जगह भी बांटा ना, तो एक एक मुसलमान को 500 स्क्वायर फीट जगह इंडिया में मिलती है। इतनी जगह आज आपके पास है, इतना तो हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड के पास भी जगह नहीं है। रेलवे, रेलवे के बाद में ये आर्मी, झूठ बात आर्मी है के सर, बाद मैं में आपको टोकूंगा, Let me finish. मत आप मैं बीच में बात रॉन्ग नहीं किया। नैरेटिव कीजिए। मुझे शर्म ये इस आप बात की गलत आ बात रही है। कर रहे हैं। आप सर, की बात कर रहे हो, फारूकी साहब, जो लोगों ने आपकी बात मुसलमानों समझ रहा को हूं। पिछड़ा बनाया, मैकेनिक बनाया, टायर पंक्चर फिट करने वाला बनाया, रिक्शा वाला बनाया, और तुम उनके लिए बात कर रहे हो। यहाँ पे मैं मुसलमान रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि 2047 में मैं इंडिया को विकसित भारत देखता हूँ। हिंदू राष्ट्र के अंदर मुसलमानों का सहयोग, मुसलमानों की भागीदारी में देखता हूँ। हिंदू राष्ट्र, अरे बाप रे। यहाँ पे वक्फ बोर्ड के अंतर्गत मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूँ, ध्यान से सुनिए क्या क्या होने वाला है। आपको अगर ये मालूम नहीं रहेगा तो और आप ध्यान से भागीदारी की सुनिए। बात कर रहे हैं। One एक second, टिकट भागीदारी नहीं है, यहाँ, आप भी भागीदारी यहाँ पे अभी भागीदारी अभी देने जा आपने रही है सुना नहीं हमारे लगता, को। कान में Anyway, आपने कोई अब सुन तो लो कोई सर। ब्लॉक और लकड़ी डाल के रखी हुई है सर। एक टिकट आपको इलेक्शन के लिए दिया नहीं, आप भागीदारी की बात कर रहे हैं। फारूकी मालिक, साहब, मेरी उनको बात उनको सुनिए। खत्म करने अरे दीजिए। वो आ रहे राजकारण हैं को आपके छोड़िए, जेब में पैसा चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। सर यहाँ पे हम रिक्शा वाले, टायर वाले, पंक्चर वाले कहां से इलेक्शन लड़ेंगे? इतना गरीब तुम लोग ने हमको बना के रखा है, कहां से इलेक्शन लड़ेंगे? दे हैव मेड श्योर यही कि सब आप लोग आपकी सोच है पिछड़े सर। जमात के हो, आप बैकवर्ड जमात के हो। कांग्रेस ने ये बात की पूरी खातिरदारी ली है, क्या तुम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पंक्चर की दुकान डाल Darwaza साहब, one सकते हो? question. Anyway, now let me listen, let me get to technical points. I don't like to get into this one-to-one debate. ये कॉल मी का मुझे शर्म आना चाहिए। हाँ, मुझे शर्म आ रही है क्या कांग्रेस के राज में मैं छोटे का बड़ा हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के राज में मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मिनिस्टर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनूंगा। मैं एक कार्यक्रम लेता हूँ और मुझे मालूम है ये पार्टी की विचारधारा क्या है। हाँ, जिन्ना का भूत भारतीय जनता पार्टी में आ गया। ये जान गए कि 18 करोड़ मुसलमान की भागीदारी के 23 करोड़ सिवाय सर, 18 ये करोड़ देश चल नहीं सकता। 23 करोड़। ये हमारे मोहन जी भागवत ने भी कबूल किया, सर, 5 करोड़ इंद्रेश कम जी कर ने दिए। भी कबूल किया, और मोदी जी को मालूम है आज हम सत्ता में ऑलरेडी है। 6 साल हमें कोई भी यहाँ से हटा नहीं सकता। मगर एक भी मुसलमान अगर रात को भूखा सोता है, एक भी मुसलमान उसके ऊपर अत्याचार होता है, एक भी मुसलमान यहाँ पे मोदी जी की विचारधारा से और उनकी आने वाले जो प्रोग्राम्स है उससे अगर वंचित होता है, तो उसका जिम्मेदार मैं कहलाऊंगा अपने आप को। अभी एक बात सुनिए, वक्फ के ऊपर 1 महीने से अभी डिबेट कर करके हम थक गए। बिल पास हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इट विल नॉट इवन स्टैंड अ चांस टू डिबेट एनीवे। इससे होने वाला क्या? आप सुनिए, आपको अगर अगर ये बात पसंद नहीं आती है तो आई एम अगेन ओपन फॉर अ डिबेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स बेनिफिशियरीज को इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। फॉस्टरिंग इंटरफेथ हार्मनी एंड कोऑपरेशन। 7 लोगों में से अगर 2 नॉन मुस्लिम्स आते हैं, पहला प्रेफरेंस शिया को, दूसरा प्रेफरेंस मुगल मुसलमानों को, इस्माइली को, भौरी को, और उसके बाद क्रिश्चियन को। अगर ये इसमें से कोई नहीं मिलता तो फिर हमारे बुद्धिस्ट लोगों को इसके अंदर लिया जाएगा। इसके अंदर आपको क्या बात चुपती है मुझे समझ में नहीं आता। इनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद में स्पेशलाइज स्किल्स एंड एक्सपर्ट। Yes. जो लाइन के लोग एक्सपर्ट है, समझो अगर रेवेन्यू के वकील है, कन्वेंस को अगर उनको जानते हैं, अगर वो मुस्लिम है तो उन्हें कमिटी के अंदर लेना चाहिए। इसके अंदर क्या गलत है मुझे समझ में नहीं आता। अलाइनमेंट विद मॉडर्न गवर्नेंस। मॉडर्न गवर्नेंस जो है जिसके अंदर जो 7/12 यहाँ पे जो शेरा फेर फार जो कहते हैं ना, जमीन का जो एक जो मुआवजा होता है, किसको जमीन कितनी है उसका मोजनी वगैरह जो कहते हैं, इसके अंदर इनहांस साइंटिफिक गवर्नेंस। उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ वक्फ इंस्टीट्यूशन। अभी जैसे कि कोई औरंगजेब की कब्र है, जैसा आपने कहा, जो उन लोगों ने वक्फ किया मरने के पहले, अभी उसकी हक, उसकी मालकाना हक किसके पास है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, या वक्फ बोर्ड के पास है, या कलेक्टर के पास है? इसको एसर्टन करने के लिए कोई कमिटी नहीं थी। वो कमिटी बनेगी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली। जैसा आपने कहा कि पार्लियामेंट हमारा है, ताज होटल हमारा है, और राम जन्मभूमि हमारा है, प्रयागराज की जमीन हमारी है, तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को इससे बाहर रखा जाएगा। और फाइनली कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस को इनहांस करना है। हमारे तुम्हारे जैसे आपने कहा कि हाँ भाई मैं जानता हूँ क्या यहाँ पे कुछ ना कुछ लकूनाज है, गलत काम हो रहा है,
सर अगर गलत काम हो रहा है तो आप सरकार पे भरोसा करिए ना सर। सरकार में वही अधिकारी जो आप लोग आपके राज में छोड़ के गए थे, क्या आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है? आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के ऊपर भरोसा नहीं है? आप लोग हर चीज को एक कोर्ट सरकार के ही अंडर में था। लास्ट सर, लास्ट उसके बाद में सर 3 साल पहले सीए एनआरसी के बारे में भी आपने ऐसा ही कहा था, वो बिल को भी आने से रोका था। मुझे बताओ ना सर, आसाम में वो ऑलमोस्ट बिल पास हो चुका है, किसकी नागरिकता गई? कौन सा मुसलमान को देश से निकाला? किधर कंसंट्रेशन कैंप है? सिर्फ नाम रखने का। और एग्रीकल्चर मुसलमानों के खिलाफ है, सीए एनआरसी मुसलमानों के खिलाफ है, ट्रिपल तलाक मुसलमानों के खिलाफ है, आर्टिकल 370 मुसलमानों के खिलाफ है। आने वाले हर बिल को आपने मुसलमान विरोधी बिल बताया। मुझे एक बताइए फारूकी साहब, अभी तक तो कुछ नहीं नजर आया। सर, अपना नैरेटिव बना के हिंदुस्तान में फारूकी साहब एक सेकंड, बड़ा कमाल कर दिया। चलेगा अली दारूवाला का ही नैरेटिव चलेगा। वहाँ पे क्या, वहाँ पे गुंडागर्दी और भारतीय जनता पार्टी से भी हूँ तो सर मैं सवाल पूछ लूं सर, दारूवाला साहब, there are 32 वक्फ boards all over the country. Your voice is very low. Can you speak loudly? Sir, there are 32 वक्फ boards all over the country. Can you hear me now? Yeah. 32 वक्फ boards all over the country. 32. Gentlemen, can you increase my volume, please? Daruwala Sahab can't hear me. Sir, do you know of any Pasmanda Muslim who is a member of any of these Waqf boards? Daruwala Sahab, can you hear me? अरे सर, यू आस्किंग द रॉन्ग पर्सन द क्वेश्चन। मैं तो ये इल्जाम लगा रहा हूँ, ये इतना क्लोज नहीं थे, ये सिर्फ खानदान के अंदर ये बटा है वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप। मुतवल्ली, उसका बेटा, उसका चाचा, उसका भतीजा, उसका सास, उसका ससुरा, खत्म हो गया। पसमंदा रे कितना दूर चले गया पसमंदा लखनऊ में, यहाँ पे तो कोई नहीं है। ये तो इलेक्शन ही नहीं लिए 50-50 सालों में। मतलब कोई सलमानी नहीं, कोई अंसारी नहीं, कोई राइन नहीं, कोई नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? क्या बात कर रहे हो सर? फारूकी साहब को पूछो ना, वो है क्या कोई वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर करके? सर फारूकी साहब, 32 वक्फ बोर्ड में कोई सैयद के अलावा, खान के अलावा, सिद्दीकी के अलावा, शेख के अलावा, और ओवरऑल सारे गरीबों की आपने क्या सही की? आज 10 साल से आप है ना हुकूमत के अंदर, आपने क्या कर दिया? मुझको एक बताइए ना सर। खाली मुसलमान के ये 3 तलाक क्या मसला था? ये मुसलमानों का मसला था 3 तलाक। पार्टी को वोट दिया है, गरीबी दूर की है, वो 3% बढ़ गया। किधर है सर? आप इलेक्शन हार गए। आप 2 किलो सर तुम्हारा नंबर 0 हो गया। मुसलमानों की गरीबी, आप कौन सी पॉलिसी लेके आए गरीबों मुसलमानों की? आप एक टिकट देते नहीं मुसलमानों का, एक एमपी आपका मुसलमान नहीं है, और आप बात करते हैं पार्टनरशिप की। अरे सर, आपने तो टिकट दिया, आप दलाली कीजिए जाके वहां पे, बताओ ना। लेकिन बोलना है तो हक बात कीजिए। आपने तो टिकट दिया था, कितने जीत गए? बीजेपी और मोदी के ऊपर भी कोई है। आप लोग खुदा नहीं हो गए। फारूकी साहब, जैसे बीजेपी दारूवाला साहब आरएसएस के संबंधित है, दारूवाला साहब आरएसएस से संबंध रखते हैं। फारूकी साहब आवाज आ रही है, लेकिन राजीव जी और प्रदीप जी की कम आ रही है, एंकर की तो उनकी तो आ रही है। फारूकी साहब आपकी बुलंद है पर गलत पार्टी के लिए। फारूकी साहब बीजेपी और आरएसएस का कहना है कि जितना 9.5 लाख एकड़ के प्रॉपर्टीज आपके पास है, तो उसके हिसाब से आपके पास 50,000 स्कूल अंडर प्रिविलेज, जो गरीब यतीम बच्चों के लिए 50,000 स्कूल, 500 स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल्स होना चाहिए था, 500 स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल्स। उनका कहना है मिलियंस को आपको स्कॉलरशिप, एजुकेशन स्कॉलरशिप देना चाहिए था। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है उनको कोई एक्शन नहीं है, बिकॉज वक़्फ़ उसमें कोई प्रोविजन नहीं है क्रिमिनल केसेस। आज टेक्नोलॉजी को वक़्फ़ के अंदर लाना, टेक्नोलॉजी डिजिटल रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आगे बढ़ना, तो एक जबरदस्त माहौल बना रहा है चेंज का, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो क्या आपत्ति आ सकता है? अगर 50,000 स्कूल की बातें हैं, अगर 50,000 स्कूल के आसपास बीजेपी कह रहा कि गैप है वो बना सकते हैं, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? 50,000 स्कूल सुन लीजिए, बोलिए फारूकी साहब बोलिए। करते हैं खाली, ये कोई काम प्रैक्टिकल करते नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, नवाडको बनी थी नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में बनी थी। सारा सर्वे ये हुआ था कि वक्फ की जो जमीनें गड़बड़ इसलिए हो जाती हैं कि वक्त के साथ वो डेवलप नहीं हुई,
तो उनको डेवलप करने के लिए पैसे नहीं थे। लिहाजा एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो वक्फ की जमीनों को डेवलप कर दे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके, कि सर्टेन, और वो जब डेवलप हो जाएगी तो उसके अंदर से जो प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी उसको शेयर किया जाए। और ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने लास्ट तक वो नवाडको को डेवलप किया। 100 करोड़ उसका पेड अप कैपिटल था, और सेंट्रल वक्फ गवर्नमेंट और दूसरी जो वो ऑर्गेनाइजेशन थी वो उसके शेयर होल्डर्स थे। वो इन्होंने तो ले जाके बंद कर दी, एक भी जगह इन लोगों ने डेवलप नहीं की। और आप बात कर रहे हैं कि ये वक्फ की जमीनों की हिफाजत करेंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। उस जमीनों से उन जमीनों को डेवलप करना था नवाडको के जरिए, क्योंकि वक्फ के पास पैसे नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने बंद कर दी। सर, इनका ये खाली जुमलेबाजी करना जानते हैं और ये अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। ये बोल रहे हैं कि ये पार्टनरशिप करना जानते हैं, एक वो टिकट तो इनको मिलता नहीं है, ये पार्टनर है। अरे ये तो भिखारी है उनके। आरएसएस के अहम दारूवाला साहब, आरएसएस इंद्रेश कुमार नंबर 2 के साथी है। आरएस में जबरदस्त तरीके से इनको इन्फ्लुएंस है कि मुस्लिम समाज को किस प्रकार से मेन स्ट्रीम में लेके आए फारूकी साहब। दारूवाला साहब, जमीन लेने के बाद, मेरा घर लेने के बाद आप मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, ये आप बोलना चाहते हैं? ये जो वक्फ की जमीनें हैं हमारे पुरखों ने दी हुई है, उनकी पर्सनल जमीनें हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जमीनें नहीं थी सर। और इसके सारे सबूत मौजूद है उसके बाद। सर वो तो उन्होंने बोला है सर, अमित शाह जी ने कहा है कि उसको टच नहीं किया जाएगा। चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान, आप उसको सीआरपीसी लेके उसके ऊपर एक्शन लीजिए। सर वो अमित शाह साहब ने बोला है फारूकी साहब कि उनको टच नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा है कि इट विल नॉट बी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इट विल बी फ्रॉम नाउ। पहले का जो है वो रहेगा, अभी आगे से दिस इज द न्यू लॉ विल बी विद इफेक्ट फ्रॉम नाउ। दैट्स व्हाट ही हैज सेड। डू यू बिलीव इन फारूकी साहब? ने फिर से बोले सर, वो मुझे मैंने आपको ये कहा कि अमित शाह साहब ने ये कहा कि ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है, पहले से नहीं है, आज से शुरू होगा। तो मतलब पहले की जो जमीन है वो है। मैं उनकी, लेकिन आप पास में जितनी इन्होंने प्रॉमिस की, मुझको एक बात बता दीजिए कि मुसलमानों के लिए उन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया? ये 2 किलो गेहूं और दाल चावल, वो तो सबको आप बांट रहे हैं, लेकिन आप मुझको मुसलमानों की पॉलिसी क्या उन्होंने एक बनाई है जिससे मुस्लिम समाज को फायदा पहुंचा, एक बता दीजिए आप मुझको। 100 ये स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, कौन सा सिटी बनाए? तो मुझको लगता है कि इनकी ये सब जुमलेबाजी है। और ये आपको क्या लगता है क्यों? फारूकी साहब खुल के बोलिए ना, आपको क्या लगता है अभी लाने की जरूरत क्या थी? अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। हाँ। और अगर कोई चुनाव भी होगा तो बिहार का चुनाव है, सारा जमीनें खिलाफ जाएगा और हमको गरीब बनाना है सर। आपको गरीब बनाना है, जब आपकी जमीन है नहीं तो आपको गरीब कैसे बना देंगे? सर वो तो जमीन आपने वक्फ कर दी, आपके पास कैसे है वो? वहां से बेदखल करना चाहते हैं। हमको जब वो बोलते हैं कि आप टेरेस पे भी नमाज नहीं पढ़ सकते, तो आप उससे अंदाजा कीजिए कि ये आपके अपने घर में भी नमाज नहीं पढ़ने। तो कहने का मतलब ये हुआ, फारूकी साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सुधार कर दें मेरी बात में अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो। दारूवाला साहब आपसे सवाल है, सवाल ये है कि ये बिल, इसको कानून आपने इसलिए बनाया है क्योंकि बाकी जमीनों पे आप लोगों ने हक जमा लिया, सिर्फ यही जमीनें बाकी बची थी। दिस यू हैव टू गिव टू ऑल योर इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स। एवरीबडी स्क्रीमिंग कि आपने सिर्फ 2 लोगों को दे दी, हमारा क्या? तो ये जमीनों का जब बंटवारा होगा तो आपके जितने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं उनके बीच में बंटवारा होगा। That is the argument which is being perpetrated everywhere against you, sir. Whether you like it or not, Daruwala Sahab, you have to answer this. Totally a childish acquisition, and that too coming from you, Rajiv sir. Sir, how is it coming from me? I am saying, out of the sir, Daruwala Sahab, please be fair. Daruwala Sahab, please be fair. How can you make an acquisition? Sir, please be fair. I am not making the acquisition. बिल पास होके नीचे आया नहीं और आप ऑलरेडी बोल रहे हैं। सर, आई एम नॉट मेकिंग एन एक्यूजेशन। आप यहाँ पर एक एंकर ने एक फॉर्च्यून टेलर बन गए सर आप। सर, आई एम नॉट मेकिंग एन एक्यूजेशन। करेगा सर, ये बताइए ना। आई एम सेइंग वेरी क्लियरली दैट जो कौन की जगह है। फारूकी साहब एक सेकंड, कौन करने वाला आप? फारूकी साहब 1 मिनट प्लीज। दारूवाला साहब, मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि ये बात मुसलमानों में फैलाई जा रही है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, I go by the facts, whatever there is in front of me.
In front of me, there is a waqf by user was a law which is ultra virus of the constitution. It had to go. It is gone. I want to ask you, Daruwala Sahab, how will you reply to this accusation? अब आप बोलें sir, Daruwala Sahab. Exactly. Now, very systematically, I'll lay down all the Please, three questions. please, बोलिए sir, Firstly, बोलिए. I'll answer you because this false narrative, ये लोग जो आते हैं एक झूठा अक्यूज करते और गवर्नमेंट में रहने की वजह से मुझे उसका जवाब देना पड़ता जी, बिल्कुल देना पड़ता है. इन्होंने ये कहा क्या वक्फ की जगह शासन लेंगी और उनके दोस्तों में बटेंगी. जी. ये कितना ट्रांसपेरेंट है, ये कितना सहज है, कितना इजी है क्या जगह लेना और दे देना. जैसे हमारी कोर्ट सो गई है, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट सो गया है, उसके ऊपर अगर जो जगह वक्फ बोर्ड की नहीं है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस जाती है, उसके ऊपर ट्रिब्यूनल के माध्यम से वहाँ पे आज रेवेन्यू के माध्यम से वहाँ पे महाराष्ट्र शासन या जो भी वहाँ की सरकार है उनका नाम लगता है. और इतना आसान है क्या वो जगह जाके हमने अडानी को अंबानी को ये कांग्रेस कहते करके जगह उनको मिल जाएंगी. इतना आसान है, इतना सहज है. ये कहने सुनने से ज्यादा ये बात को मैं जवाब दे रहा हूँ. आई फील एज अ जोक ओवर हियर. Okay. Now, coming back to your question over here, that nothing of this sort is going to happen. No land is going to come back to us. It is retrospective. From today, what land is in your custody? It will be defined. The revenue is the final authority which will decide the boundaries and the guidelines. Over here, your land doesn't become mine just because a bill has passed. Point number 2. फरूकी साहब ये सब छोड़ दीजिए. मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप इसका सच्ची सच्ची से छोड़. आप कांग्रेस के हैं, मैं बीजेपी का हूँ, हम दो मुसलमान भाई है और हम लोग डिबेट कर रहे हैं. आप तो मेरे दुश्मन नहीं है, मैं तो जिंदगी में आपको मिला नहीं. मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब दो. वक्फ बोर्ड जो यहाँ पे ब्रिटिश की सरकार आने के पहले से औरंगजेब ने, मुगलों ने, उनके परदादा ने ये जगह छोड़ के गई, उसके अंदर तुम्हारे मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं जो ने अपनी जगह वक्फ को डोनेट करी. मुझे एक यूनिवर्सिटी दिखाइए प्लीज. आप बोलो अली भाई आप तो शायद नींद में हो, ये यूनिवर्सिटी जाके देखिए, ये वक्फ बोर्ड ने बनाया. आप मुझे एक हॉस्पिटल दिखाइए. मैं कह रहा हूँ आपको एक हॉस्पिटल दिखाओ जहाँ पे वक्फ बोर्ड के माध्यम से ट्रीटमेंट मिल रहा है, ऑपरेशन हो रहे, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है. आप मुझे एक स्कूल दिखाओ, मदरसा छोड़ के, हाँ सर मदरसा छोड़ के एक स्कूल दिखाओ प्राइमरी, एक कॉलेज दिखाइए. अब दिखाइए मुझे. आई विल रियली रिस्पेक्ट यू. मैं बोलूंगा सॉरी फरूकी साहब गलती हो गई मेरे से. अब बताइए ना, आप गूगल करिए, आप भले 5 मिनट के बाद बताइए अगर आपके पास आज जवाब नहीं. बोलो आप सुन लीजिए 200 साल का वक्फा था मुगल और अंग्रेजों के बीच में, और उस वक्त के हालात जो है ना मुसलमानों ने मिलके लड़े हैं ये. और ये जो शुरू किया गया था मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद थी. आप ये 200 साल का वक्फा भूल गए. उस वक्त स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फिक्र नहीं थी. उस वक्त हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाली जंग लड़ रहे थे. आप किस खाम ख्याली में पड़े हुए हैं सर. लोगों ने अपने खून बहाए हैं और आप यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं. आपको ये लग रहा है मुसलमानों के आप मदरसे कब्जा करके जा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं. हाँ, फिर वो वहाँ पे जंगे लड़ रहे थे, अपनी जानों पे खेल रहे थे और आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं. और आपने अभी लिया है ना. मुझको एक सवाल का जवाब दीजिए. आप यूनिवर्सिटी दिखाइए, हॉस्पिटल मुझको एक सवाल का जवाब बताइए कि अंबानी की जमीन का आप क्या नोटिस देने वाले हैं. कम से कम वो तो वक्फ की जमीन क्लियर है ना. आप नोटिस देने वाले हैं क्या? आप देंगे नोटिस? चलिए आज आपने वक्फ अपने हाथ में लिया है, नया एक्ट बनाया है, लेकिन वो जगह तो क्लियर वक्फ की है ना. आप उसको नोटिस मारने वाले हैं क्या? ये बताइए. चलिए सर आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया. एक मुसलमान नागरिक होने के नाते से आप तो मैंने आपको एक सवाल पूछा सर. एक सवाल बस, कोई मुश्किल नहीं सर. एक सवाल का जवाब. मुझे एक यूनिवर्सिटी दिखाइए. चलो आजादी जीत गई. कैसे दिखाए आपको कि जब हम जंग लड़ रहे थे तो सुनाओ जब सर, आजादी सुनो ना की जंग लड़ रहे थे तो कैसे आपको बताएं? सुनो ना सर, सुनो. उसके बावजूद भी ये जितने आपको ये मीनारे नजर आ रहे हैं क्या आपने बना के दिए हैं? बीजेपी ने बना के दिए. उसे आरएसएस से बना के दिए. कुतुब मीनार, ताजमहल आप लोगों ने बना के दिए हैं. अरे वो मीनारों और मस्जिद से कौम को फायदा क्या है? और करोड़ों कमा रहे हैं आप उससे.
आज ताजमहल की वजह से पूरे हिंदुस्तान को जाना जाता है, टूरिस्ट यहाँ आते हैं। ये आपने बना, बीजेपी ने बना के दी है या आरएसएस ने बना के दी है? आप क्या बात करते अरे हैं? किस किस्म गरीबों की का बात है फायदा आपकी? क्या हो रहा है ख्याल में बताइए है ना आप? मुझे। सर वो बोल तो रहे हैं यू आर अर्निंग अलीगढ़ रेवेन्यू सर। यूनिवर्सिटी आरएसएस ने बना सर, के दी ताजमहल से है, रेवेन्यू आज अर्न इसके तो ऊपर कर आप रहे हैं। क्लेम करने बैठते हैं। अरे फारूकी साहब, बात यह है कि आप बार बार कांग्रेस जो है भय दिखा रहे हैं। आपको दिली दिल में मालूम है कि कुछ चीज देश हित में सच्चाई है। जैसे उन्होंने कहा कि शाह बानो जो जजमेंट था दैट वाज रॉन्ग, आपको दिली दिल में मालूम था गलत था, फिर भी आप विरोध किए। ट्रिपल तलाक, मुस्लिम महिलाओं को जो भी है जस्टिस प्रोवाइड करना था, भले 1% हो, वो सही था, आप उसका भी विरोध किए। आर्टिकल 370 जो कश्मीर और रेवोल्यूशन लेके अभी जम्मू एंड कश्मीर में, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला खुद मानते हैं इस चीज को। तो महाकुंभ, तो आप हर चीज के लिए वक्फ तो हर एक चीज जो देश हित में है, आप सिर्फ अपीसमेंट के लिए मुसलमान को गुमराह करें। सीएए दूसरा सीए, आप कोई मुस्लिम को कोई तकलीफ, कोई मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है सीएए में, मगर आप मुस्लिम समाज, कांग्रेस मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहा है कि ये आपके हित में नहीं है, आपके खिलाफ। तो कब तक ये चलता रहेगा? आखिरकार देश हित को समझना पड़ेगा, कांग्रेस को, मुसलमान समाज को समझाना पड़ेगा कि देश हित में है। फारूकी साहब, आप डरा रहे हो। नहीं सर, देखिए, हमको तो एक मालूम है, आज की तारीख में एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, तो ये मुसलमान को मैं और आप जाके समझा नहीं पाएंगे। आप बड़ी पिक्चर बात कीजिए, आप छोटी छोटी बातें मत कीजिए। आपके घर में नौकर रहता है, वो भी बहुत अच्छे से रहता है, तो क्या आप मुझको नौकर बना के इस हिंदुस्तान में रखना चाहते हैं? वो पॉसिबल नहीं है सर। आपको पार्टनरशिप देना पड़ेगी, बराबर का हक देना पड़ेगा। ये आज़ादी जो है हमने बराबर साथ में लड़ के ली है, किसी ने कोई चमचागिरी करके नहीं ली है, खून पसीने बहाए हैं और बराबर बहाए हैं। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि दूसरे कौम के नहीं शामिल थे, लेकिन हम शामिल थे, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बराबर का हक देना पड़ेगा, वरना ये चीज अच्छी नहीं रहेगी। मैं ये बोलना पर फारूकी साहब, ये चीज शाह बानो ट्रिपल तलाक, सीएए, आर्टिकल 370, इसमें आप मुस्लिम समाज क्यों गुमराह हो रहा है? इसमें क्या, इनके खिलाफ क्या है इसमें? नहीं सर, इससे मेरे मसले नहीं हल होते हैं। आप 3 तलाक करके उसमें कितना क्या आपने मसले हल किए? हमारा मसला है इकोनॉमी, हमारा मसला है एजुकेशन, हमारा मसला है बिजनेस, हमारा मसला है रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप को से वो नौकरियां, हमारा मसला है महंगाई, हमारा मसला है डे टू डे लाइफ के अंदर सर उठा के जीने का हक, जो कि आप रोजाना हमको मारे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने भी ये कहा कि जो ये बुलडोजर चला रहे हैं ये हक अच्छा नहीं है। एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है, लेकिन अगर कोई खुदा ना खासा गलत बनता है, उसको आपका कानून है, कानून तरीके से उसको नोटिस दीजिए, उसका पूरा प्रोसीजर फॉलो कीजिए और उसका वो करिए। लेकिन मुसलमान का है, आप बुलडोजर लेके जाते हैं, उसके ऊपर एक इल्जाम देते हैं और उसको तोड़ देते हैं। इस तरीके से देश नहीं चलने वाला है, या किसी कम्युनिटी को आप डरा धमका लेंगे, ज्यादा दिन तक ये नहीं चला पाएंगे। एक्सटेंशन ऑफ दिस सीएए के माध्यम से 2 साल में कंटिन्यूस आप मुसलमान समाज को रोड पे लेके आए, स्ट्रीट्स पे लेके आए फाइट करने के लिए, कह रहा है कि ये आपके खिलाफ है, ये मुस्लिम समाज के खिलाफ है। मगर सीए में क्या असलियत में क्या कुछ खिलाफ था? 2 साल आप लगातार मुस्लिम समाज को दिल्ली में बाहर निकाल दिया। बेसिक बात आप समझिए, बहुत टेक्निकल पॉइंट है कि जो हिंदुओं किसी और गैर कौम के साथ जो कानून हो वही मुसलमान के साथ भी होना चाहिए। वहां पे अगर हिंदू आ जाए तो उसको तो शरीयत देंगे, लेकिन मुसलमान आए उसको नहीं देंगे। आप क्यों ऐसा करेंगे साहब? क्योंकि उसको तो 7 पूछ तक आप इंक्वायरी करेंगे। सर आसपास के देशों में अगर शरणार्थी आ जाए तो उसको आप शरीयत दे देंगे, लेकिन वही मुसलमान आ जाए तो उसको आप नहीं देंगे। ये बेसिक है सर उसका। लेकिन सर जो आप बात बांग्लादेश और पाकिस्तान बना ही मुसलमानों के लिए था ना सर, उससे मैं सहमत हूँ फारूकी साहब, लेकिन जो बात बिल्कुल बोलिए बिल्कुल बात जो फैलाई गई वो ये थी कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनकी नागरिकता छीनने वाली है, ये बात फैलाई गई थी। दैट इज ऑब्जेक्शन। तो इसी बात पे मैं एक और जगह पर आ रहा हूं फारूकी साहब आपके पास। मुसलमानों में भी बहुत ऐसे लोग हैं, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं सर बहुत क्लेवर लोग हैं ये, मैं आपको बता दूं, बहुत जबरदस्त। मैं इनके साथ काम कर चुका हूं।
हमारे जो नानाजी देशमुख थे उनके साथ मैंने 3 साल काम किया है सर, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड ही वाज अ ग्रेट मैन, बट देन इवन द आरएसएस हैव फॉरगॉटन हिम। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या बार बार फॉर एग्जाम्पल औरंगजेब की तारीफ हो जाती है, कहीं कहीं किसी और की ऐसी तारीफ हो जाती है, कोई ऐसा उल्टा सीधा बयान दे देता है। सर मुझे नहीं लगता कि कोई सेंसिबल मुस्लिम आज के माहौल में ऐसा बयान देगा अनलेस ही इज बीइंग पेड टू डू इट। आप बताएं फारूकी साहब, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? मुझे तो ऐसा लगता है खड़ा किया जाता है कि बोलो, ये बोलिए, वो लड़ाओ और राज करो, ये इनका आरएसएस और बीजेपी का काम है। एक चीज बंद करते नहीं कि दूसरा वो शुरू कर देते हैं। सवाल का अब जवाब आप देते नहीं देखिए कि औरंगजेब को मरे 300 साल 200 साल हो गए, 318 साल सर, 318 साल हो गए। जी। अब उसकी कब्र के ऊपर इन्होंने मरवा मार्च दिया, द 3 मार्च 1707 जी। हाँ, क्या है सर ये? अब उसका नामकरण कर रहे हैं। आज ही मैंने पढ़ा कि खुलताबाद का वो नाम चेंज करके वो क्या करेंगे। चल ठीक है, वो जो चाहिए वो कर ले, उससे हिंदुस्तान का क्या फायदा होने वाला है? किसी कौम का, किसी इंसान का क्या फायदा हो जाने वाला है सर नाम चेंज करने? I want to make a big statement. औरंगजेब बोलिए सर। मट्टी उठा के किसी और देश में लेके जाएंगे या ले जाके समंदर में फेंक देंगे, क्या उससे महंगाई दूर होने वाली है? गरीबी दूर होने वाली है सर? उससे एजुकेशन आने वाली है? उससे नौकरी मिलने वाला है क्या सर? किसी को भी, हिंदू हो सर 160 साल तक मराठा साम्राज्य था, उन्होंने औरंगजेब की मजार को टच नहीं किया। उन्होंने मुगलिया शासन जो था उसको डिसमेंटल करके अपना शासन एस्टेब्लिश किया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो मुगलिया बादशाह था उसको सामने रखा, क्योंकि पूरा देश दिल्ली को दिखता था। अब यू वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट, गो अहेड सर। राजीव सर, प्रदीप सर, प्लीज गो अहेड सर। फारूकी साहब एकदम ध्यान से सुनिए जी। सुन अभी यहाँ पे राजीव सर ने बोला मुगलाई नहीं क्या, मुगल राज। मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, ये वकफ लैंड जो है ना सर, आप जिसका क्लेम कर रहे हो और 1/3 ऑफ इंडिया, वकफ लैंड इज अ स्टोलन लैंड फ्रॉम द इंडियन एम्परर्स, द हिंदू एम्परर्स। ये औरंगजेब और उसके खानदान वालों ने ये हिंदू राजाओं की जगह छीनी और जाते टाइम ये देकर गए, क्योंकि ये ऊपर लेकर नहीं गए। वकफ लैंड इज स्टोलन लैंड। यू कैन मेक दिस एज अ हेडलाइन। आई डोंट वांट टू लिसन टू नॉनसेंस ओवर हियर। मैं आपका सुन रहा हूं और हिस्ट्री सर ये सब का जवाब नहीं है। ये लोग कुछ भी बक करते हैं और वो नैरेटिव फैला के अपना काम करते हैं। शोड ऑफ लैंड एंड वकफ लैंड शुड गो बैक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं तो कहता हूँ ये 9.5 लाख हेक्टेयर जगह है ना, ये वापस सरकार को देना चाहिए। आपने क्या पाकिस्तान से जगह लेकर आए थे क्या? सऊदी अरब से जगह लेकर आए थे क्या आप? यहाँ पे हिंदू बादशाह इनका असली मकसद अब समझ गए ना। अल्लाह के बोल रहे थे ना, शर्म आपको आना चाहिए। अमित शाह ने जो कहा था, अभी आप बोल रहे थे, तो मुझको लगता था कि उनके दिल में नहीं 100% से ही 10% कुछ है, लेकिन देखिए ये रियलिटी बाहर आ गई। हमने दारू वाला साहब के मुंह से सुन लिया। सर हिस्ट्री प्रूव करेगा। एक 300 साल के पन्ने निकाल के देखो। आप जो वकफ लैंड बोल रहे हो ना, ये बहादुर शाह जफर ने और औरंगजेब ने और अकबर ने अपने घर से नहीं लाया। ये हिंदुओं की जगह थी यहाँ पर, आपने वो लिया और मुसलमान को दे दिया। शर्म हमारे कोर्ट को आना चाहिए। बस कर दीजिए सर, ये हिपोक्रेसी बस करिए। किसकी नागरिकता जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी को उठ नाम रख के अमित शाह, मोदी, योगी इतने ईमानदारी से काम कर रहे, और क्या को मुसलमानों को टिकट देना चाहिए? किसलिए? क्या आपने सर झंडा गाड़ा है आप लोगों ने? बिल्कुल सही, सुनते जाइए सर, नोट करिए ये सब, करेक्ट, सुनते रहिए और इसको वायरल करिए। सर यहाँ पर जो है ना, यहाँ की खाते और वाह दूसरे देश की, अरे आप इतना टिकट देना चाहिए। आपको एक मेंबर भी काजे का नहीं बनाने वाले वो, आप जाइए, आप इतना कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। आपको वो कायदे से कोई वोट भी नहीं देने वाले हैं। prove your merit before you demand a ticket. That's all I want to say. वकफ लैंड जो है ना, ये एक्चुअल हिंदू पुश्तैनी जमीन है, उनको वापस दे दी है। उनको नहीं चाहिए, आ जाओ। अगर मर गए बेचारे, शहीद हो गए, मुगलों ने उनको कत्लेआम कर दिया, औरंगजेब ने कैनन तोप के सामने उनको उड़ा दिया। Every inch of वकफ लैंड is robbed land by जो हम लोग लाल बुक लेके चलते हैं ना, वो इसीलिए चलते हैं कि they don't believe in खून किया कानून। ये कानून में बिलीव ही नहीं करते। अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा। दारोगा साहब एंड फारूकी साहब, 1 second सर,
Gentlemen, Darwala Sahab, this is especially for you. Sir, after 1946 and after the adoption of the Indian Constitution, 1952 के बाद, it was decided everything would be on an as-is where-is ठीक है, it basis. is decided. We have to follow. Sir, we have to as go is by- where-is basis, But all sir. this land belongs to the Hindu emperors. I am very firm on it. सर हिंदू एम्परर्स, फिर बीच में फिर बुद्धिस्ट भी आएंगे, फिर जैन्स भी आएंगे, फिर ना जाने कहां तक जाएंगे सर आप. यू अरे गो तो बैक जगह इन्होंने 20,000 सर years. पर्शिया से नहीं लाया ना, ये जगह तो हिंदुस्तान की थी ना. तो सब लोग हिंदुस्तान के ही हैं ना सर अभी भी. तो ये तो तो सर फिर- सब लोग हिंदुस्तान के ही हैं. सर ये Can I कायदे answer? कानून Can I answer में you? बिलीव नहीं करते हैं, ये इंडियन Can I कॉन्स्टिट्यूशन answer में you? बिलीव नहीं Can I करते हैं. answer you? इनकी Can I बात answer से you? पूरा हम लोग को लग गया, इसीलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बचाएं. इन जैसे लोगों हाँ, की केस करो मेरे ऊपर. जो मेरे बीजेपी ऊपर के केस अंदर, करो, सच बात आरएसएस के करने के अंदर लिए. है सर. हाँ, हाँ, मेरे ये ऊपर क्या केस कर करिए. जाएंगे? यू डोंट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन सर. आपने अपने मुंह से बता दिया. I believe in the fact. अभी बजाज साहब ने कहा Every inch. 1952 One second, Rajiv में ये sir, let me डिसीजन हुआ repeat था, what I आप उस पे said. बिलीव नहीं करते. आप एक्सेप्ट कीजिए पहले वो 1952 का जो कॉन्स्टिट्यूशन के जी, अंदर बोलिए, जो है. बोलिए. Sir, बजाज साहब उनको याद हकीकत दिलाइए आप. जानिए, दरवाजा साहब बोलिए. जानिए, हकीकत जानिए. Every inch of Waqf land is stolen land, robbed by killing innocent owners. Those owners were Indians, Hindustanis. ये जगह आपने पर्शिया से नहीं लाया. And why am I angry? I'll tell you. इसके अंदर ये प्रोविजन है कि इसकी आने वाली इनकम ये सिर्फ मुसलमानों पे खर्च किया जाए. शर्म आपको आना चाहिए सर. जगह छीना किससे और आने वाली आमदनी आप दे रहे किसको सर? अरे दिल बड़ा करो यार. क्या आपको अल्लाह को मुंह बताना है सर? बस. Right, I think we've just about had enough. Thank you, gentlemen. Thank you. I think this Thank you. discussion will keep going round and round. And Darwala Sahab, you made a very shocking statement. Darwala Sahab चले गए, क्या हुआ? अरे सुन तो लो. नवाज के लिए जा रहे हैं उसका. जी, right. Thank you very much, Darwala Sahab. Thank you very much, Asif Farooqi Thank you. sir. Thank One of you these very days we'll have a very, I hope we'll have a stimulating discussion on the Constitution of India and what it stands for and why we gained independence and why India has survived so far. I think the only reason why India survived so far in the way we have and why we are a powerful nation today is because the Constitution of India grants equal rights to all. And Pradeep ji, the Constitution of India does not allow you to go back in history to try and right the wrongs which were allegedly committed at that time. That I think was decided by the Constituent Assembly. And the Constituent Assembly was very, very clear कि भाई गड़े मुर्दे आप नहीं उठाएंगे. आज से शुरू होगी हिंदुस्तान की नई हिस्ट्री. ये तय हुआ था और सबने तय किया था ये अक्रॉस द बोर्ड. Everybody said it कि ये होगा. So I think we should follow that. I think this is, we should not try to, have any retrograde steps. Long live Indian Constitution. Absolutely, that goes without saying. Sir, that goes without saying. And anybody who tries to go against the Constitution of India, I think the people of India will teach that person or those people a lesson. That will happen. Inshallah. The other That way will of looking at it is if laws are being made, and the act is as per the constitution, then what? Sir, the act is as per the constitution, but what Darwala said is not as per the constitution. I'm talking about and these it's laws. not even as per the act. These laws, now if Sir, you see sir, this particular sir, act sir. itself, Pradeep ji, it went through the entire process. No, It went through the process, it was Pradeep brought ji, in the there's parliament. one basic principle. It was sent to the JPC, from the JPC it Sir, came Pradeep ji, back, ek second, it ek was second. passed in both the houses. Sir, ek All- second. No, just finish this. Sir, ये तो आप The technical entire बात कर रहे हैं ना? amendments, the entire amendments was discussed upon and all political parties discussed. I'm saying the argument what will come in. No. And after completely going through the Lok Sabha and Raj Sabha, it's got to the president. The fact remains, sir, that as far as the Waqf amendment is concerned, I don't think it can be challenged, very frankly, because as Mr. Amit Shah, Farooqi साहब जरा ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप बोलिए. As Mr. Amit Shah made it very clear, this is not with retrospective effect. पुराना जो है वो वैसा ही रहेगा. आज के बाद जो होगा वो अलग होगा. That's it. So जो पुराने जितने भी कब्रिस्तान हैं, जितने भी दरगाह हैं, जितने भी वक्फ के मस्जिदें हैं, सब कुछ वो वैसी की वैसी रहेंगी. उसको कोई टेस्ट नहीं करेगा. तो I don't understand where the objection comes in from. As far as Darwala Sahab is concerned, well, that's his opinion. That is definitely not the BJP's opinion or the NDA's opinion, and that is not in the act. अब आप बोलें. फारूकी साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए. हाँ नहीं, मैं ये बोलना चाहता था कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी गवर्नमेंट जब चेंजेस करती है जी. तो वो इसलिए ताकत में आ जाती है और एक्ट बना लेती है
मैं प्रदीप जी को ये बात बता रहा हूँ कि सर उन्होंने बिल्कुल बनाया है, लेकिन वो एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में जा रहा है। गवर्नमेंट का काम किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट या फॉर करने का नहीं है। गवर्नमेंट का काम है कि किस तरीके से वो जनता की मदद कर सके, उनके अच्छे के लिए काम करे। जी। इन्होंने जो पूरा एक्ट चेंज किया है उससे एक कम्युनिटी को बहुत ही नुकसान पहुंच रहा है सर, और वो उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। ऐसा वो all आपके I साथ can सहमत नहीं है इससे। बीजेपी कहती है कि ये बिल्कुल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के हक के लिए, ऐसा उनका कहना है। बट दिस डिस्कशन कैन गो ऑन, बट दिस डिस्कशन कैन गो ऑन। बट फारूकी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू। आपको सुनकर के बहुत मजा आता है सर, और आप इसी तरह दिखते रहे। हर हफ्ते आप 10 साल और यंगर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं मुझे मालूम नहीं। But let me tell you, Farooqi Saab, you have become one of a respected spokesperson of the Congress, and everybody, at least I can see in Maharashtra, acknowledges that Farooqi Saab जब बात करते हैं तो ढंग से बात करते हैं और बड़े अदब से, विद अ लॉट ऑफ रिसर्च, मानना पड़ेगा। आप जब बात करते हैं बहुत, ये मेरी कमाई है सर, बहुत सिंसियरिटी उसमें उसे निकल के बाहर जी आता है, बिल्कुल। बहुत सिंसियरिटी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके खास दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त आपके दिलीप कुमार साहब की आत्मा आपके अंदर आ रही है, जिस तरीके से आप बात करते हैं। वेरी फ्रैंक, नो वेरी सर फ्रैंकली 1% भी आ जाए तो मैं तो दुनिया में तो कामयाबी हूँ। नहीं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे यूसुफ साहब यानी दिलीप साहब जैसे बात किया करते थे, जब उनसे कोई भी पॉलिटिकल सवाल पूछा जाता था बड़े अदब से, एंड अबव ऑल आई रिमेंबर विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिलीप साहब ने लाइफ में आज तक कभी भी कोई इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दी है, वैसे ही आप बात कर रहे हैं। वेरी फ्रैंकली कांग्रेचुलेशंस। And you have emerged, Thank you very I'm much, telling sir. you. मैं आपसे वक्त लेके आप लोगों के साथ बैठना चाहता हूँ, क्योंकि मुझको बोलने के आदाब नहीं आते इसमें पब्लिक। अरे बहुत जबरदस्त लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें आपसे सीखना चाहिए। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड यू हैव इन द कांग्रेस emerged as a leader who is speaking for the community in a big way. थैंक यू सर, थैंक यू। And in a very balanced मैं manner. आपके पास बैठूंगा। एंड इन अ वेरी बैलेंस। सर, दिस इज योर ऑफिस, जब मर्जी आइए। ये Thank you. आपका Thank you, दफ्तर है, sir. जब मर्जी आइए, Thank you. whenever you Thank want. you very much. Thank you Take very care. much, sir. नमस्कार, thank you so much. God bless you, sir. जय हिंद। So Ali Daruwala साहब went slightly haywire, right? ये सारी जमीन जो है वो हिंदुओं की। He's speaking the RSS language. सर आरएसएस ये भाषा नहीं बोलती सर, ये दारूवाला साहब की भाषा है। आई थिंक ही मस्ट हैव बीन टोल्ड दैट। ये जरा शगुफ्ता छोड़ के देखिए, देखते हैं कहाँ जाता है। आई एम श्योर दिस विल नाउ कैच ऑन, अ लॉट ऑफ अदर पीपल आर गोइंग टू से I दिस। think this is going to emerge in a big way. Yes, right. That's just about it in tonight's show. That was a very, very exciting show, very, very interesting show. Even though Prajapati Saab couldn't join us because he had forgotten his earphones at home, and he was in the car. I think we will have him And with us tomorrow. for a brief period he came, there was no light also. No, he was in the car. No. He was traveling, I think. So in any event, that's it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं किया है। ये मैं सिर्फ ये तकिया कला में हर बार आपको रिमाइंड कर देता हूँ। The fastest growing channel. The fastest growing channel in the nation. तो आप सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं किया है। और as far as we are concerned, we'll of course be back with you tomorrow. कल हम आपके साथ एक बार फिर होंगे, प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय।